Good evening, everyone. I hope all of us are doing good and all of us are in the best of health. So, आज इस सेशन के थ्रू we'll be seeing some MCQ hacks. While there is nothing a thing like a hack, it is more of what a calculated thing. There are some things which we need to know. Knowledge knows no substitution. Knowledge has no substitution. आपको पहली चीज़ आपको ट्राई करनी चाहिए. We need to know more and more things. करेंगे हम याद. We will be very thorough with our notes, will be thorough with our lectures और बार बार पढ़ते रहेंगे. Will be repeatedly doing one thing multiple times so that we reduce the very chance of making mistakes. Now, in an examination hall, even if we do best of our effort, if the exam is on the easier side, we might be doing 70 questions. But if exam is on the difficult side, we might be doing 60 questions. अब इस दौरान क्या होता है कि मान लीजिए आपको क्वेश्चंस, कोई कम्पिटिटिव एग्जाम है, आपकी स्केलिंग किसी दूसरे के साथ हो रही है एंड अदर माइट बी नोइंग मोर क्वेश्चंस देन यू. सो in such a situation we are faced with the predicament whether to attempt more or stay at the safe level जो हमें जितने आते हैं. So I'll suggest you we should go for more. Now how to go for more? अब कुछ एक क्वेश्चंस में हमें ऐसा दिखेगा, स्टेटमेंट्स तो हमें एक दो तो पता है यार, दूसरे नहीं पता. So how do we go about it? So the oldest method in the book is elimination technique. Elimination technique works flawlessly. There are many ways to perform it, but apart from it, we'll be seeing these elimination techniques as well as we'll be seeing other things too. अब एक I have written a particular thing. What should we aim is 80 से 85% हम पेपर कंप्लीट करें हमारा. तो 100 क्वेश्चंस हैं, हमें 80 to 85 क्वेश्चंस वी शुड डू इट इन एनी वे. And out of 80 to 85 questions, we should have or maintain an accuracy of 80%. So अगर आप 80 क्वेश्चन करते हो, से basically we do 80 questions, which is 80%, and 80% accuracy, which turns out to be 64. After deducting 0.25 marks, so we'll be left with 60 marks out on 100. And mind you, 60 is a good score. If the exam comes on an easier side, on an easier note, we should try to go as high as 90. Or in some of exams I have even attempted 90, 95 too, where the exam was too easy. So even though we can go at an higher number, that is 90 or 95, but we should not go at the expense of accuracy. 90 is a good number as long as you are able to maintain an accuracy of 80%. So when 80% accuracy, that makes 72 mark, and when deducted for negative marks, it will lead to 67.5 mark. So 67, 68 is a good mark in any competitive exam. Now moving forward, how do we go about our business? First is elimination technique. We'll be seeing those things in the later part. Other is how to see statements. Now there are two type of statements. One is statements that tend to be wrong, and the other are statements that tend to be right. अब पहले हम देखेंगे statements that tend to be wrong. Number one is extreme statement. Now these are the most obvious statements whenever we see a question where extreme statements are being made. For an example, Indian Meteorological Department has never failed. So never, entirely, always, completely. These terms, these perfection cannot be achieved. तो ऐसे में we can make an guess, make a guess कि ये तो गलत होगा because explicit और बिल्कुल extreme statement हो नहीं सकती. And see, mind you, these are the for the things which we definitely know. हमें नहीं आती चीज़ें, जो आती हैं वो तो हम ठीक ही कर देंगे. मान लीजिए अगर ये पूछा हुआ है कि सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट, अब ये हमें पता है, वी नो इट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, तो यहाँ हम ये रूल नहीं अप्लाई करेंगे. हम ये रूल जहाँ अप्लाई करते हैं वहाँ अप्लाई करते हैं, सॉरी, जहाँ हमें आंसर नहीं पता हो. ठीक है, वेर वी आर मेकिंग अ गेस. So in those questions we can use only these things. So one is keywords like always, never, only, entirely are more or less always wrong. Second, now this continuously increasing, steadily increasing or decreasing trends. अगर एक पर्टिकुलर ट्रेंड होगा आपका कि हमेशा इंक्रीज होती गई है या डिक्रीज होती गई है, दीज आर ऑल्सो रॉन्ग. अब इसका एग्जाम्पल कैसे, आपके 2020 या 20 हाँ 20 या 2021 के 20 के प्रीलिम्स में
क्या आया था, एक क्वेश्चन आया था जैसे कि इंडियन जीडीपी हैज ना सॉरी, ये आया था आपका ट्रेड डेफिसिट ऑफ इंडिया हैज बीन नेगेटिव सिंस लास्ट डेकेड। अब वो था अनलेस द कोविड हिट। कोविड में जब हुआ तो हमारा ट्रेड डेफिसिट पॉजिटिव हो गया था, मतलब ट्रेड सरप्लस हो गया था इंडिया का। सो तो स्टेडली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वी कैन नॉट गो ऑन अ पर्टिकुलर ट्रेंड। कोई भी चीज थ्रू आउट सेम नहीं रह सकती। सो दीज थिंग्स कैन बी क्रॉस्ड आउट। एग्जाम्पल, India's GDP has been steadily increasing every year since 1950. So this is wrong. Third is statement with number and data. Now, unless number data का पता हो, we tend to see, जो मैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, मोर और लेस डेटाज आर ऑन द हेवर्ड साइड, है ना, गलती होता थोड़ा। तो ये देख सकते हैं। अब नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, मिनिस्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन। आपको देखोगे प्रीलिम्स के अगर एग्जाम उठाते हो आप, तो कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कोई मिनिस्ट्री कुछ है, जैसे मान लीजिए ये आती है आपकी ट्रेड, एग्रीकल्चर ट्रेड का आ गया, अपेडा, जैसे अपेडा एक ऑर्गेनाइजेशन है, अपेडा एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी, कुछ समथिंग एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब अपेडा हम एग्रीकल्चर सोचेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आ जाएगा क्वेश्चन। अपेडा इज एन एपेक्स बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। सो हमें पता होना चाहिए ऐसे। अब पढ़ते वक्त अभी आप पढ़ोगे भी उस टाइम भी एक्सेप्शन ऐसे देखनी है, कॉमन सेंस रहेगी एग्रीकल्चर होगा, मगर नहीं, अपेडा इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो ऐसी चीजें हमें देखते रहना है। तो आप पढ़ोगे, अभी वी आर इन द बिगिनिंग फेज ऑफ आवर स्टडीज और मे बी इन एडवांस। तो जब रिवाइज करें हम उस समय क्या देखेंगे कि जो थोड़ी सी मिसमैच हो उन तरफ हम ज़्यादा ध्यान देंगे। सी एमसीक्यू एग्जाम्स आर नथिंग बट अ टेस्ट ऑफ एक्सेप्शंस। जितनी आपको एक्सेप्शंस पता होगी उतने ही आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। एक्सेप्शंस आपको पता है तो जनरल रूल्स भी आपको पता होंगे कि सन राइजेज इन द ईस्ट एक्सेप्ट समथिंग, या कि कुछ एक्सेप्शन एक्सेप्ट वगैरह आपके स्टेटमेंट्स पता ही होंगे आपको, ठीक है। ऐसे ही नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, मिनिस्ट्रीज जब भी हम पढ़ें हमें ध्यान से देखना है, जो कॉमन सेंस की है वो याद करनी छोड़ दो। अगर चाइल्ड की कोई स्कीम है तो मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन एंड चाइल्ड है तो हम छोड़ दो, याद क्यों करनी है, वो स्पेसिफिक ही है, जनरल है, पता है। अनलेस देर इज अ पर्टिकुलर स्कीम विच हैज सम अदर मिनिस्ट्री एज द नोडल मिनिस्ट्री, वो हमें याद करनी है। फिर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ आपके एक दो क्वेश्चन तो पक्के ठीक होंगे आपके एग्जाम में। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, से अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज डिफाइंड एज दिस। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं, ये हमने ध्यान से देखने से चीजें, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइन ही नहीं किया गया ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, या अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कैग आर सो एंड सो, ये भी नहीं है। सो दीज थिंग्स शुड बी kept in mind। जैसे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। सो जहां कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस या द एक्ट डिफाइंस, उस टाइम वी नीड टू बी वेरी, क्या कहते हैं उसे, सतर्क हो जाए, अलर्ट हो जाए कि ध्यान से पढ़े स्टेटमेंट। नाउ ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव का क्या है कि इन हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी रेडली यूजेस ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन एज करेक्ट। अब ये है एक चीज यूपीएससी के लिए। अब जो एचपीएससी का, जो जितना मेरा नजरिया रहा है एचपीएससी के लिए एग्जाम्स के लिए, ऑल ऑफ द अबव इज मोर और लेस योर आंसर। कुछ भी हो, आप जितने एग्जाम उठा के देखो, अगर आप व्हेन इन डाउट ऑल ऑफ द अबव इज द थिंग यू गो। यूपीएससी में इफ यू आर टेकिंग यूपीएससी साइंस एंड टेक इन्वायरमेंट, कोई भी क्वेश्चन है, जैसे मान लो व्हाट कैन, एक क्वेश्चन आया था 2020 में, व्हाट कैन एआई डू, एआई कैन डू एवरीथिंग। तो मशीन लर्निंग कैन डू एवरीथिंग, तो ऑल ऑफ द अबव आ गया। एचपीएससी कोई भी एग्जाम देखो, अगर जैसे पॉलिटिकल साइंस का हो या प्रीलिम्स का हो, एचसीएस का, तो ऑल ऑफ द अबव यू विल फाइंड अ पोर्टेंट आंसर इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। और देखो यार, वैसे भी ना, आपको अगर 5 क्वेश्चन आप तुक्के मारते हो, उसमें से इफ यू कैन जस्ट गेट 2 राइट, इट मीन्स यू आर ऑन पॉजिटिव साइड। सो यू नीड नॉट वरी अबाउट दीज थिंग्स। तो ऑल ऑफ द अबव यू कैन गो फॉर इट इफ यू नो। आपको एक दो स्टेटमेंटों में डाउट है, देखो अगर आपको ये पता ही कि गलत है स्टेटमेंट, फिर तो ऑल ऑफ द अबव हम क्यों ही करेंगे। इफ यू हैव डाउट
कि एक स्टेटमेंट रहेगी, 3 आपको पता है, ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर यू शुड बी गोइंग फॉर। सिमिलरली नन ऑफ द अबव कभी मैंने आंसर ही नहीं देखा किसी का। अगर आपने देखा हो वो भी अलग, आप वो एक्सेप्शन ही है। आई हैव रेयरली सीन नन ऑफ द अबव एज एन ऑप्शन, एज एन आंसर। तो यहाँ भी हमें ध्यान रखना है, इट मोस्टली सर्व्स एज अ डिस्ट्रैक्टर। इसके बाद स्टेटमेंट विद बट, वेयर एज, वाइल। सो दीज आर ट्रैप्स वेयर वन साइड इज करेक्ट। जैसे इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री बट इट हैज जीडीपी मोर देन डेवलप्ड कंट्रीज। तो बट, वेयर एज, वाइल ये आ जाए तो क्या होता है कि अब हम क्या करते हैं, फटाफट प्रेशर का टाइम होता है, प्रेशर, और उस टाइम फटाफट हम सोचते हैं आंसर फटाफट करें। तो इस समय कई बार क्या होता है कि बट से पहले वाला देखते हैं, हाँ ठीक है, बट स्टेटमेंट ठीक, मगर हमें यहाँ खुद को रोकना है। वी नीड टू स्टॉप, वी नीड टू read both part of the statements, that is the first part as well as the second part. So like in India the president is a nominal executive, very much right, but enjoys the real power, this is wrong. So we need to read the full line. And mind you one thing, just a second, mind you one thing, जितना आपका इजी पेपर आएगा उतना ही अलर्ट आपको होना पड़ेगा, क्योंकि इजी पेपर में द स्कोप ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स इज वेरी लेस। जैसे मान लीजिए अगर आप, क्वेश्चन यही आता है, सन राइजेज इन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, अगर ये क्वेश्चन भी आप गलत कर दोगे तो क्या होगा, आपने गलत किया, दूसरे नहीं करेंगे गलत ये, सो यू विल बी मिसिंग आउट ऑन अ क्वेश्चन विच एवरीवन इज डूइंग राइट। सो easier the exam comes, more alert you have to be. अब स्कीम प्रोग्राम विद टू वाइड बेनिफिशियरीज, अब ये हो, दिस इज वेरी गुड। जैसे कोई स्कीम आती है, हमने पढ़ी ना हो स्कीम, पढ़ी हो तो क्वेश्चन हम ठीक कर ही लेंगे। अगर मान लीजिए हमने पढ़ी नहीं कोई स्कीम, तो हाउ डू वी गो अबाउट दैट स्कीम? से इफ दैट क्वेश्चन या स्कीम हैव अ स्टेटमेंट वेयर इट सेज where the beneficiaries of the scheme या stakeholder of the schemes are too wide. For example, all farmers will be given 6,000 rupees under PM Kisan. तो ऑल फार्मर्स ये हो तो सकता नहीं, बिकॉज एवरी वन कैन नॉट गेट 6,000 रुपीज, ओनली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हु हैव सम पर्टिकुलर अ कट ऑफ, ओनली दोज विल बी गेटिंग। सो ऐसे में वेर बेनिफिशियरीज आर यूनिवर्सलाइज्ड, कि पूरे सबको ही हम दे रहे हैं, संपूर्ण दे रहे हैं, वहां वी नीड टू मेक क्वेश्चन एंड वी नीड टू गेट आवर थिंकिंग राइट। अब बिकॉज ड्यू टू ये आर इम्पोर्टेंट, cause effect is risky। अब रिस्की इन द फैक्ट दैट, मान लीजिए एक चीज का एक ही रीजन करना इज रिस्की। अब मान लीजिए जैसे हमने लिखा, रिपोर्ट ऑफ 1857 फेल्ड बिकॉज ऑफ पेजेंट्स डिड नॉट पार्टिसिपेट। अब ये ठीक होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि देयर वर अदर रीजंस टू। सो सिमिलरली से इफ अ पर्टिकुलर कॉज इफेक्ट इज गिवन एंड कॉज इफेक्ट की, जैसे मान लो ये कि सीजन्स या सीजन्स ओनली चेंजेस बिकॉज ऑफ रोटेशन, तो ये गलत होगा, या ओनली रेवोल्यूशन। तो देर आर मेनी फैक्टर्स विच प्ले देयर पार्ट, सो वी नीड टू बी वेरी अलर्ट ऑन इट। अब वेग टर्म्स, नॉट ऑब्जेक्टिव या वेग टर्म्स में मतलब क्या, वर्ड्स लाइक वेल डिफाइंड, क्लियरली एक्सप्लेन्ड आर रेड फ्लैग्स। सो इफ इट इज सेड द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिफाइंस सेकुलरिज्म, ऐसा है तो नहीं। सो अगर जहां भी ना वेल डिफाइंड, जहां बिल्कुल ही क्लियरली एक्सप्लेन्ड, सो टर्म्स लाइक दीज आर मोर और लेस रॉन्ग ऑन देयर पार्ट। नॉन वेरीफाइबल स्टेटमेंट कौन सी है कि जो आप वेरीफाई ना कर सको, ठीक है, जो हम वेरीफाई ना कर सके तो वो क्या है, गलत या होगी या ठीक होगी। जैसे मान लीजिए, अब मान ये था, चोसना चोगिनी टेम्पल इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल इन इंडिया, 2020 में आया था यूपीएससी में। द चोसना चोगिनी टेम्पल इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल इन इंडिया। आप ये वेरीफाई कर सकते हो? आप ये बात पेपर में बैठ के सोचोगे यार, आप सोचोगे यार सर्कुलर टेम्पल तो मेरे घर के आसपास ही मिल जाए, कोई ना कोई जो गोल होगा। वेरीफाई कर सकते हो आप? पूरी इंडिया में आप देख सकते हो सारे टेम्पल्स का, कैन यू गेट अ फोटोग्राफ? नहीं ला सकते। तो ऐसे में क्या होगा, स्टेटमेंट गलती कर दो, कहीं ना कहीं तो गोल टेम्पल मिलेगा कहीं और भी,
So these are some hacks by which we can mark those statements wrong which have these conditions. Now we have to see some statements that tend to be right. गलत देख ली, अब सही भी होगी कुछ. अब स्टेटमेंट विच यूजेस कैन, वहां देखो ऑलवेज था, ऐसे इनके ऑपोजिट होंगे. स्टेटमेंट विच यूजेस कैन, जैसे द राज्यसभा कैन डिस्कस अ मनी बिल बट कैन नॉट अमेंड इट. कैन या मे, कैन मे, अगर दीज सिग्निफाइज कि देर इज सम रिजिड फ्लेक्सिबिलिटी. ना फ्लेक्सिबल क्वेश्चंस मोर और लेस ठीक हो ही जाते हैं अगर स्टेटमेंट्स हो, दे आर मोर और लेस राइट. सो इसी में इसका एक्सटेंशन यही है. वर्ड्स लाइक सम, माइट, मे, मोर देन, लेस. अब जैसे डिफॉरेस्टेशन मे लीड टू लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, तो ठीक है ना. देर आर अदर रीजंस टू विच लीड्स टू सॉइल फर्टिलिटी इन, है ना, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी. तो डिफॉरेस्टेशन मे बी वन ऑफ दोज. अब अब देखो यार, ये मेरा एनालिसिस है, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो मगर ठीक भी कर सकते हो, आपकी मर्जी. ये यूपीएससी वालों के लिए ज़्यादा है. अब कई बार यूपीएससी में अभी 2018 के बाद क्या होगा था, 19 के पेपर में यूपीएससी एलिमिनेटेड द एलिमिनेशन टेक्निक इटसेल्फ. तो उसमें क्या आता था, ओनली वन पेयर इज करेक्ट, ओनली वन पेयर, ओनली टू पेयर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे, ओनली थ्री पेयर. अब देखो यार, इसमें आपको खुद भी थोड़ा सतर्क रहना है, मगर मैं बता रहा हूँ दिस इज माई अप्रोच एंड आई डोंट एंड आई वोंट बी टेकिंग एनी फॉल फॉर इट. अगर आप अपने ये वाली अपने हिसाब से लेना, बट आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द आंसर इज ओनली टू पेयर्स, कि दो ठीक दी होते. सो गो या ट्रेड दिस थिन आइस एट योर ओन क्वेश्चन. सुमित मोर इज नॉट टू बी ब्लेम्ड. अब एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी से हम देख चुके हैं. व्हाट कैन टेक्नोलॉजी डू? एवरीथिंग. ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. जैसे क्रिस्पर, हाँ, ये क्रिस्पर का भी आया था क्वेश्चन. तो क्रिस्पर का, व्हाट कैन क्रिस्पर कैस इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस, तो ऑल आंसर था उसका. ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम, दिस इज मोर और लेस राइट. अब ऑब्जेक्टिव आप स्कीम में देखोगे मोर और लेस ठीक लिखा मिलता है. बस आप मेक श्योर करो कि कॉमन सेंस हो बस उसमें. जैसे कि ये पीएम कुसुम एम्स टू प्रमोट सोलर पंप अमंग फार्मर्स. पीएम कुसुम, अब कुसुम की फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, बट हमें देखेंगे अगर फुल फॉर्म में पता है, सोलर पंप्स करता ही मिलेगा. अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप देख लो. ये कोई ज़्यादा इसमें वही है जो ऊपर हम कर चुके हैं बात. अब ये एक्सक्यूज मी, एक ये जैसे लास्ट थी, इम्पॉसिबल टू डिसअप्रूव स्टेटमेंट. अगर इफ समथिंग कैन नॉट बी टेस्टेड, यूपीएससी मेक्स इट राइट. फॉर एग्जाम्पल, वुमेन इन विजयनगर 2019 में आया था. वुमेन इन 20 में आया था, 19 में नहीं आया था, 20 में आया था. 20 में भी क्या, 21 में आया था यार, 2021 में आया था शायद. कि वुमेन इन विजयनगर एम्पायर वर स्किल्ड इन रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी एंड अकाउंटेंसी. ठीक है. अब आप ये कर सकते हो वेरीफाई? कभी नहीं कर सकते, तो यूजुअली ये ठीक ही मिलते हैं. ठीक है. तो ये सम ऑफ दीज आर द ट्रिक्स विच वी कैन यूज. अब इनकी एप्लीकेशन ही है, तो ये देख सकते हैं. जैसे विद रेफर्स टू कार्बन नैनो ट्यूब्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. दे कैन बी यूज्ड एज कैरियर्स ऑफ ड्रग्स. ये छोड़ो, हमें नहीं पता ये क्या है, हमें नहीं पता. मान लीजिए ये भी हमें नहीं पता. अब कार्बन नैनो ट्यूब्स, अब ये स्टेटमेंट देख के हमें पता चल रहा होगा बॉडी में यूज होते हैं कार्बन नैनो ट्यूब्स. कैपलरी भी आ गया, ड्रग एंड एंटीजन भी आ गया, कुछ बॉडी का काम है. अगर बॉडी में बायोडिग्रेडेबल ही सामान लगा दिया, तो आज लगाया वो 3-4 सालों बाद खराब ही हो जाएगा. सो इन बॉडी whenever we are fitting some stuff, we need to fit those stuffs which are not degradable. सो ये पक्की गलत है, हमें ये पता चल गया. आप समझ आया कि मान लीजिए जो स्टेंट डलता है हार्ट में, स्टेंट, अगर स्टेंट आपका बायोडिग्रेडेबल स्टेंट लगाने लगे तो क्या होगा, थोड़ा टाइम बाद वो स्टेंट ही खराब हो जाएगा, वो डिग्रेड हो जाएगा, तो आपका फिर दोबारा से कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी. तो इन सच ए थिंग हम क्या करेंगे, विल एलिमिनेट फोर्थ. So we are left with only one thing, that is 1 and 2. So this was your right answer. Up next, say the Parliament of India can place a particular law in the 9th schedule of Constitution of India. अब हमने देखा था कैन वाली स्टेटमेंट मोर और लेस ठीक ही होती है. कैन प्लेस, सो विल टिक इट. अब वैलिडिटी ऑफ अ लॉ प्लेस्ड इन 9th schedule कैन नॉट बी. अब दिस इज एन एब्सोल्यूट स्टेटमेंट. कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट. अब ये
हो सकता है सर एक्सट्रीम स्टेटमेंट, तो दिस इज रॉन्ग, सो आंसर विल बी ए। ठीक है, ओनली वन इज राइट, one only. So similarly, these are some of the examples which I have given. So I'll make sure I have the link of this PDF in the description below, और हम इसमें से कर लें। जैसे मैंने बताया था आपका ग्रीन हाउस गैस का मेजर सोर्स क्या होगा, इन्वायरमेंट का। यूजुअली व्हेन इन डाउट ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, तो ये सारे तीनों ठीक थे। और इसमें सिमिलरली ये कुछ एक क्वेश्चन है, सो यू कैन प्रैक्टिस दीज थिंग्स एंड here we are at the end of our session. So ये बार बार पढ़ो, जब क्वेश्चंस करो मेक श्योर आप इनको इनकॉर्पोरेट करो, एक्यूरेसी देखो कितना, हाउ मच आर दे वर्किंग फॉर यू, एंड आई होप दे विल वर्क गुड फॉर यू। और उन्हीं क्वेश्चंस में देखना जो हमें नहीं आते, हर एक क्वेश्चन में ब्लैंकेट में ना लगाओ इसे, जो जो नहीं आते उसी में देखो। और अगर देखो अगर ज़्यादा में हम लगा रहे हैं इसका मतलब हमने पढ़ा नहीं है। तो पहली बात तो पढ़ो, और उसके बाद कहीं दिक्कत आ रही है तो ये लगाओ। और ये एक बस जस्ट लास्ट वर्ड ऑफ क्वेश्चन एंड लास्ट स्ट्रेटेजी, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, देख लो, जैसे मान लो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8। से a क्वेश्चन पेपर हैज 8 क्वेश्चंस इन टोटल, 8 ही है, 100 नहीं है, 8 लगाओ एग्जाम्पल। अब 8 क्वेश्चन से इनमें से मान लीजिए एडमिट कार्ड, अब मेरे पास में एडमिट कार्ड तो अलाउ होता है मुझे लेके जाना, तो इस एडमिट कार्ड के पीछे मैं क्या करूंगा, आई मेक टू कॉलम्स। वन कॉलम इज 75%, 50 to 75%। जो 100% आता है वो तो कर ही लेंगे हम, तो 50 से 75% जो हमें डाउट है वो वाले क्वेश्चन। वन इज नो नॉलेज। अब इसमें क्या करूंगा, मान लो क्वेश्चन 1 है, 1 मुझे आता था अच्छे से, तो 1 का ए आंसर आया, जैसे 1 टू ए बी सी डी, एक तो मैं ए यहाँ टिक करूंगा और एक 1 के नीचे ए लिख दूंगा मैं। अब इसका फायदा कहाँ होता है, जब आप OMR भरते हो तो यू कैन इजीली सी 1A 2B, तो आपके OMR गलत नहीं होगा। तो दिस इज वन ट्रिक। सेकंड, इससे मान लो दूसरे क्वेश्चन को आपको क्या होगा, स्टेटमेंट 1, आप ये ए बी सी और डी आपने एलिमिनेट किया, सब कुछ किया, आप ए और बी में कंफ्यूज हो, ए और बी में से आंसर होगा सी डी हैव सक्सेसफुली एलिमिनेटेड। तो अंडर सच थिंग अब आप क्या करोगे, यूजुअली आप छोड़ देते हो, मतलब वैसे छोड़ क्या देते हो कि अब उसमें पहले तो ये ट्रिक्स लगाएंगे ऊपर वाली हमारी जो हमने पढ़ी है, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे छोड़ देंगे, बाद में देखेंगे। अब ये नहीं करना आपने, जो आपको 50 to 75 है यहाँ आप लिख दो क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे मान लो 3 क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही नहीं आता, सो 3 यू विल राइट हियर। तो आखिरी में क्या, जैसे मान लो 2 4 5, ऐसे आपने 3 क्वेश्चन लिख दिए जो आपको 75% आते हैं, एक आपको बिल्कुल नहीं आता। अब 100 क्वेश्चन हम सोचो आपको कुछ एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लिख दोगे यहाँ, तो आखिरी में व्हाट विल बी डूइंग इज विल बी काउंटिंग दीज क्वेश्चंस। जैसे अभी 1 2 3 4 क्वेश्चन मैंने किए नहीं, मतलब आई ओनली डन 50% ऑफ द एग्जाम, तो आई नीड टू डू मोर थिंग्स, और ये क्वेश्चन मुझे करने पड़ेंगे 50 to 75%, क्योंकि ये जिसको नॉलेज ही नहीं है वो हम क्यों खराब करें अपना टाइम। सो वी कैन इजिली इग्नोर दीज क्वेश्चंस, आखिरी में समय हमारे पास कम होता है, तो वी कैन इग्नोर दीज क्वेश्चंस, विल बी फोकसिंग ऑन 50 to 75% वाले क्वेश्चंस। सीरियल वाइज चलेंगे, जो आता है हम यहाँ से काट देंगे जो अगर आता है हमें, और जो नहीं आता वो हम यहाँ से काट के यहाँ लिख देंगे। सो दिस इज अ सिंपल ट्रिक, वी नीड टू डू दिस। और जब 100 क्वेश्चन होते हैं, जो मान लीजिए अगर यहाँ हमने गिने, अगर 80 क्वेश्चन आपने कर दिए पहले अटेम्प्ट में, तो यहाँ आप कम रिस्क लो। अगर हमने किए 60 हैं तो ये 50 to 75 वालों को और कन्वर्ट करो। सो दिस इज अ ट्रिक विच वी शुड बी डूइंग। आपको टेस्ट में OMR पे करो, एक पेज के पीछे आप लिखते चलो, ये 50 to 75% वाले प्रोबेबल क्वेश्चन हैं, ये नॉलेज ही नहीं है, नॉलेज वालों को छेड़ो ही ना, 50 से 75 वाले को करो। और इसका फायदा ये भी है, एक तो आप फटाफट क्वेश्चन नंबर पे पहुंच पाओगे, वरना आप ऐसे पन्ने पलटते रह जाओगे, ठीक है, वो क्वेश्चन मिस हो जाएंगे। तो ऐसे यू कैन डायरेक्टली रीच टू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। Secondly, you can make calculative guesses, and thirdly, what you can do is you can analyze your performance.
हम क्या करते हैं, वो हमारे में क्वेश्चंस गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। अब आपने आखिरी में क्या करना, अगर आपने देखने कितने क्वेश्चंस हो गए, यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट दीज थिंग्स, दीज नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एंड यू जस्ट नीड टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। 150 तो उसमें से माइनस कर दिए, 100 है तो उसमें से माइनस कर दिए। So thank you. I'll be ending your session, and study well and reach out to us. This is our number. WhatsApp us whatever doubt you have in whatever aspect of your question and preparation. We are there to help you. Bye bye. Thank you.